Hello everyone. Today we'll start new chapter, that is forces and laws of motion. We already completed chapter number 1. We will discuss all type of questions. I already given 6 assignment in chapter 1. So complete all the assignment and written work, okay, on time, because your school is going to open. So complete your pending works. Okay, so let's start this chapter. The next chapter is forces and laws of motion. Forces and laws of motion. Okay, so what is force? How can you define force? Very common definition is that the push or pull is force. Okay, so expand this definition. Force is a push or pull which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion, direction of motion, or shape and size of a body. Okay, so this is the definition of force. I will provide notes, so no need to write anything. Okay, just listen. And you can also say that force is that cause which produces acceleration in the body. Okay, you can also say like that, body on which it acts. Suppose this body is in rest. Okay, and I applied the force of 10 Newton. Okay, now the body is start moving. Okay, start moving. It means it changes its state. Okay, and second thing, suppose a body is moving with a velocity of 5 meter per second. Okay, and I applied force from here. Okay, so I am able to stop this object or body. Okay, so what can a force can do? What can a force can do? So force can do 3 things. First, a force or set of forces can change the speed of the body. What can they do? First thing, force can do 3 things. Force can do 3 things. First one is a force or a set of force. A force or a set of forces. Okay, a force or set of forces can change the speed of the body. Okay, second, what can force can do? A force or set of forces can change the direction of motion of the body. A force or set of forces can change the direction of motion of a body. And the third thing, what can force can do? A force or set of forces can change the shape of a body. मीन्स ये कि एक फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी के स्पीड को बढ़ा घटा सकता है. ठीक है. दूसरा, व्हाट फोर्स कैन डू, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. मतलब सपोज करो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है. आई
force can able to do what? Change the direction of the motion. मैंने इधर से फोर्स लगाया, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन बदल गई, ठीक। तो और क्या कर सकता है? कैन चेंज अ फोर्स और सेट ऑफ फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। सपोज कभी रबड़ की बॉल है, मैंने ऊपर से फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये बॉल क्या हो गई? थोड़ी दब गई। इट्स मीन फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, और साइज भी बदल सकता है, ठीक है, शेप एंड साइज, ठीक। जैसे एक इलास्टिक है, सपोज करो ये 10 मीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, ठीक, इसको पकड़ के मैंने खींच दी, ठीक। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। अच्छा, यूनिट ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स? Is I'm just doing the introduction. When I taught total second law, then we will see in more detail about the force. Now, what is the unit of force? So unit of the force, SI unit of the force is Newton. सर आइजैक न्यूटन के नाम पे ही इनका यूनिट पड़ा फोर्स का, और फोर्स का इन्वेंशन भी न्यूटन साहब ने ही किया था, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल एन से, ठीक। अच्छा, फोर्स जैसे मान लो कि मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन द बोर्ड, तो डायरेक्शन का है टेन साइड्स, तो उसको ये बोर्ड है, ठीक। बोर्ड के ऑब्जेक्ट मान लो मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ और इसको पुल कर रहा हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट को आई एम पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट, सो इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड आल्सो। सपोज 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। Force has direction and magnitude both. So force is what? Force is vector quantity. Okay, so the force is vector quantity. अब इसके और भी कुछ यूनिट देखेंगे हम लोग जब हम फोर्स का फॉर्मूला डेराइव करेंगे, ठीक है। डायन है, किलोग्राम फोर्स है, क्या नेक्स्ट जब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट Newton second law. Okay. Now, the next topic is resultant force. अब resultant as a name indicated result, मतलब कई फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, उनका जो रिजल्ट that is what resultant force. A single force act on a body to produce the same effect in it as it done by all forces. मतलब ये मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, बॉल है, इसमें इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, ठीक। मान लेते हैं ये F1, F2 एंड F3 फोर्सेस है, और ये है बॉल, ओके। सो ये सारे फोर्स मिलके एक फोर्स बनेंगे और ये बॉल मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। So this is the resultant force. This is the resultant force. Okay. So this is called what? Resultant force. अब दूसरा आता है क्या? दो फोर्स होते हैं, बैलेंस एंड unbalanced force. Okay, so balance force क्या होता है? Balance force वो फोर्स है जो क्या इसका रिजल्टेंट जीरो. So you can say that if the resultant of all forces, if the resultant of all forces is zero. Resultant of all forces is zero.
लेकिन ये भी कह सकते हैं द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये ज़्यादा सही रहेगा। एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड व्हाट, बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाएगा, जस्ट द अपोजिट, इज द रिजल्टेंट ऑफ all forces acting on a body is not zero, then that is called what, unbalanced force. So if the resultant of all forces acting on a body is not zero, so this is called what, unbalanced force. अब जैसे इस कुछ एग्जांपल्स देते हैं, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ठीक, तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इसकी वेट की वजह से, ठीक, जिस लोग अभी भी आगे बढ़ना है हम लोग को ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक। तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से खींचती है वो ही उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है, ठीक। तो ये होता है किसके बराबर, mg के बराबर। अब देखो अगर ये बैलेंस फोर्स नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुकी नहीं रहती, ठीक। तो इसका मतलब कोई ना कोई इसको बैलेंस कर रहा है, दैट इज दिस इज रिएक्शन, ठीक। R इज इक्वल टू mg, सो दिस फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक। अच्छा अब मान लो कि सपोज तो एक ऑब्जेक्ट है ऐसे रखा हुआ है, इधर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg, और सपोज कर लो कि ये R लगा तुम्हारा 10 न्यूटन, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसको उठाया और ऊपर की ओर फोर्स लगाया और वो फोर्स है तुम्हारा सपोज करो 20 न्यूटन, ठीक। तो इसका मतलब बॉडी क्या हुई, स्टेट को चेंज की, तो क्या हो गया ये अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ, ठीक। एक तरह से और डिफाइन डेफिनेशन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर क्या करे बॉडी एक्सेलरेट की, ठीक है, मतलब सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर सेट ऑफ फोर्स या फोर्स जो है प्रोड्यूसेस नो एक्सेलरेशन, एक और डेफिनेशन आ गया यहाँ पे, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, बैलेंस्ड फोर्स, एंड इफ द सेट ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन देन दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ओके। एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस की तो वो क्या हो गया हमारा अनबैलेंस फोर्स। अच्छा दो फोर्स अगर बैलेंस्ड है, ठीक है, तो ये मस्ट है कि वो इक्वल और अपोजिट होंगे, ठीक है, इक्वल और अपोजिट होंगे, एंड दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, magnitude should be also same. You can say that if two forces balance each other, they must be in opposite direction and have equal magnitude. Okay. Then now जो फोर्स है उसको टू पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और कहीं कहीं किसी को दिया हुआ है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। ये दो पार्ट में क्लासिफाइड है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये दिया हुआ एक्शन एट अ डिस्टेंस, मतलब थोड़ी दूरी पे जाके थोड़ी दूर से जो है फोर्स लगना, ठीक है। तो व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स? द कॉन्टैक्ट फोर्स रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट।
नाम से ही पता तुमको इस क्लियर हो रहा है कि अगर, ठीक है, कांटेक्ट मतलब फिजिकल कांटेक्ट है, उसके बाद अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, कांटेक्ट फोर्स। मीन्स इसमें फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए क्या, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक, कौन कौन सा, एक होना चाहिए ऑन one by which force is exerted and other on which the force is exerted। ठीक, एक जिस पे फोर्स लग रहा है और दूसरा जो फोर्स लगा रहा है। ठीक, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, कांटेक्ट फोर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे मान लो स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल स्प्रिंग। ठीक, जैसे मान लो कॉइल स्प्रिंग है, मैं इसको खींच रहा हूँ या दबा रहा हूँ। ठीक, तो ये कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। ठीक, और मान लो कि फुटबॉल है, फुटबॉल को मैंने पैर से किक किया। ठीक है, दैट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स जस्ट इसका अपोजिट, मीन्स इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक, मार्कर है, मैंने छोड़ दिया, ये नीचे आ गया, तो नीचे जा रहा है, तो अर्थ इसको कौन से फोर्स से कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल force is the example of non-contact force, or you can say that one more example, electrical force। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो। फोर्स एक्सर्टेड ऑन अस, ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अस, लीव दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, बट द क्वेश्चन इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अस बाय द विंड। ठीक है, मतलब हवा जो फोर्स हमारे ऊपर लगा रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इसका जो है आंसर तुम लोगों को दोगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। ठीक है, गैलीलियो, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट who put the base of the physics, okay, you can say somewhere we are calling him the father of the physics also। Okay, so Galileo done one experiment, let's see what experiment he done। Galileo एक्सपेरिमेंट, ठीक है, गैलीलियो साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। दैट वाज गैलीलियो, ही डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन। ठीक है, गैलीलियो से पहले हम लोग ये जानते थे किसी भी बॉडी का जो नेचुरल स्टेट है वो है रेस्ट, बट गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बाद ये सही नहीं रहा। ठीक, अब एक एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया, एक मार्बल बॉल लिया, ठीक है, उसको इंक्लाइन प्लेन पे जो है ड्रॉप किया, बताते हैं। ठीक है, तो गैलीलियो साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो इंक्लाइन प्लेन लिए, दो, ठीक है, और थोड़ा फ्रिक्शन लेस सरफेस बनाया जो कि बहुत टफ है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये देखा कि जब यहाँ से बॉल को ड्रॉप कर रहे थे, ठीक, तो इसकी स्पीड यहाँ वेलोसिटी यहाँ इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, और फिर यहाँ जाते जाते डिक्रीज हो रही थी। ठीक, सेम ऐसे ही यहाँ भी हो रहा था।
यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी और यहाँ जाते जाते जो है डिक्रीज हो रही थी। अभी इसका सेकंड पार्ट बताते हैं क्या है। और फ्रिक्शनलेस सरफेस था, यहाँ पे इंक्रीज हुई और ये जब देखो पहले थोड़ा कम इंक्लाइन था, ठीक, उसके बाद थोड़ा और इंक्लाइन किया उसको, ठीक है, झुकाते गए और फिर फ्लैट कर दिए, ठीक। जब फ्लैट कर दिए तो उन्होंने ये देखा कि ये जो है बॉल चलती चली गई। तो गैलीलियो साहब जो है what he wants to prove in this experiment, when he did this experiment, some conclusions are there, or we can say some observation are there. The velocity of the body increases when it rolls down, okay, an inclined plane, and increases, okay, sorry, the velocity of the body increases when it rolls down in the inclined plane, and velocity decreases when body what rolls up in the plane, okay, and it is attending same height, okay, same height means अगर यहाँ h हाइट से छोड़ा जा रहा था तो यहाँ भी वो h हाइट तक जा रहा था, ओके। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा उन्होंने कि if the ball flows between two planes inclined equally, it will attain the same height on the both side, okay, ठीक। if the inclination of the second plane is gradually decreases मतलब धीरे धीरे इसका इंक्लिनेशन हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तब क्या हो रहा था, the balls rolls over a larger distance in the order to reach the same height, तब भी वो सेम हाइट तक जा रहा था, ठीक। अच्छा, अब जो है सेकंड प्लेन को, when the second plane is horizontal, इसको कैसा किया, कैसे कर दिया उन्होंने, horizontal कर दिया। when the second plane is horizontal, the ball continues to move indefinitely, मतलब वो चलता ही चला गया, ठीक। जो कि क्या कह सकते हैं, in practice the ball comes, but in practice क्या रहेगा, balls come into the rest because of what, because of frictional force, ठीक है। फ्रिक्शन अगर हम इसको करेंगे तो ये जो है रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक। तो ये उन्होंने देखा, ठीक, और यही जो है बेस्ड ऑन दिस फैक्ट क्या हुआ, गैलीलियो कंक्लूडेड दैट, इन्होंने क्या बताया, द नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी, कंक्लूजन ये निकला, the natural state of a body is not a rest। मैंने स्टार्टिंग में बोला, ठीक, हम लोग पहले क्या जानते थे कि किसी भी बॉडी का नेचुरल स्टेट क्या है, वो रेस्ट है। क्यों ऐसा क्यों बोलते थे हम लोग, इसलिए बोलते थे जैसे मान लो कि हम ये ऑब्जेक्ट है, इसको फेंक दिए, ये कहीं ना कहीं जाकर रुकेगी, मैं चल रहा हूँ कहीं ना कहीं रुकूंगा, कोई बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में ही आना चाहिए, इससे पहले हम लोग ये जानते थे। लेकिन गैलीलियो साहब ने बोला द नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट अ रेस्ट, ओके, और नॉट अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। तो फिर है क्या भाई, फिर क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, इट is a tendency, it is a tendency of the body to oppose the change, to oppose the change in its state of motion, ठीक है, और रेस्ट ऑल्सो, ठीक है। मतलब कुल मिला जुला के ये कहना चाह रहे थे, ठीक है, कि अगर बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, ठीक, अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी। मतलब क्या कि उसका नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी इज नॉट
a state of rest. It's a tendency of a body to oppose the change in its state of motion or rest. ठीक है। अब ये जो फैक्ट थे इसको एक साथ लिया गया और यही गैलीलियो का क्या कह सकते हैं, गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया था और वही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बना। ठीक है, वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ बना और हम लोग लॉ जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज हैं। ठीक, लेकिन जो ये था यही क्या बना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ का बेस बना। ठीक, इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी आगे चल के बोलेंगे, कैसे बोलेंगे बताते हैं आगे। ठीक, नाउ थैंक यू।